नाम है, जैसे कि जस्ट आइडिया, if we are for RCT we have consort guidelines, how to write, how to formulate हमारा टाइटल, इंट्रोडक्शन जो हम लिखते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इट हैज अ सेट फॉर्मेट एवरी। पर ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए स्ट्रोब है, गाइडलाइंस, सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस के लिए प्रिज्मा है, स्टडी प्रोटोकॉल के लिए स्प्रिंट है, ओके। ऐसी डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए स्टार्ड है, केस रिपोर्ट्स के लिए केयर प्रोटोकॉल है, ओके। तो थोड़ा आइडिया आ जाए आपको ये व्हाट इज दिस प्रिज्मा, स्ट्रोब, कंसोर्ट। जैसे हम पढ़ते हैं कंसोर्ट डायग्राम, कंसोर्ट गाइडलाइंस, स्प्रिंट गाइडलाइंस, इट इज जस्ट हाउ टू यू फॉर्मुलेट योर मैन्युस्क्रिप्ट, ओके। सो जैसे मैं स्प्रिंट बोलूंगा, स्प्रिट है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल आइटम्स, रिकमेंडेशंस फॉर इंटरवेंशनल ट्रायल्स, ओके। सो इसमें आइटम्स है, क्या क्या आइटम है। फर्स्ट आएगा एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, टाइटल, ट्रायल रजिस्ट्री, फंडिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेम्स ऑफ द ऑथर, ऑथर्स रजिस्ट्रेशन। फिर इंट्रोडक्शन, जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसके सब हेडिंग, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रायल डिजाइन। फिर मेथड्स, फिर मटेरियल मेथड, फिर डाटा कलेक्शन, जो वट एवर यू आर्टिकल यू रेड। सो स्प्रिंट मैंने किसके लिए बोला था, इट इज फॉर व्हाट, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशन स्टडी प्रोटोकॉल में, जनरल स्टडी प्रोटोकॉल के कहाँ गए, ओके। तो इसीलिए कंसर्ट है, कंसर्ट इज फॉर आरसीटीज। कंसर्ट का फुल फॉर्म क्या है, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स, consolidated standards of reporting trials. The quality of RCT can be asserted based on criteria pre-established by consort. इसमें क्या है, it is developed to identify problems arising from conducting RCT but also to report it, leading to quality assessment. इसके 6 criteria categories, title, abstract, introduction, methods, result, discussion, जो whatever जैसे हम thesis लिखते हैं वही। तो इसी पे प्रिज्मा है। प्रिज्मा क्या है, ये सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स, प्रिज्मा प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमिक रिव्यूज। P means preferred, R means reporting, I means items, preferred report item for systematic reviews and meta-analysis. In 1996, to address the suboptimal reporting of meta-analysis, an international group developed by guidance called Quorum. Quorum means quality of reporting of meta-analysis. Quality of reporting of meta-analysis. Focused on the reporting of meta-analysis of RCTs. Later, it was initially Quorum, but they then included that Quorum was for only meta-analysis. They included systematic reviews also in it. So when the formulation of manuscript of both systematic review and RCT is called Prisma, okay. So then they later encompass systematic reviews and meta-analysis together. It was named as Prisma. Systematic review is review of clearly formulated questions that uses systematic and explicit methods to identify, select, and critically appraise relevant research and to collect and analyze data. Meta-analysis use of statistical techniques in systematic review to integrate the result of included studies. So meta-analysis is the analysis of systematic reviews. Okay. So उससे एक ऊपर systematic review क्या है, review of clearly formulated questions. So in a systematic review there is already predefined questions that are used a systematic way, and we exploit data to identify, select, critically appraise relevant research. So first before in the systematic review we formulate questions. Our idea is a particular relevant critical research and to collect, analyze that data. Meta-analysis क्या है, use of statistical techniques to analyze systematic reviews. Okay, so उन दोनों का whatever it is called Prisma. Prisma में क्या है,
meeting held in Ottawa, Canada in 2005. Objectives were to revise and expand quorum. Prisma statement consists of 27 items and the sequences. First is title. Title के साथ होना चाहिए, उसके बाद abstract. Abstract should be structural information. जैसे abstract में छोटा introduction, उसका material methods, discussion, conclusion. उसके बाद brief में introduction, फिर से method, result, discussion and last में funding. Fine? समझ आया? प्रिज्मा क्या है? रिपोर्टिंग क्या था? रिपोर्टिंग, मेटा एनालिसिस, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, preferred reporting items for systematic review and meta analysis. ओके, ये फिर इंट्रोडक्शन आप अगर 3 नंबर का आया तो ज्यादा, और इंट्रोडक्शन में व्हाट यू से अपना थीसिस याद करना, कोई भी इंट्रोडक्शन में व्हाट यू रीड अरे दिस हाँ, रिजल्ट डॉक्टर राकेश ने सिस्टमैटिक रिव्यू बनाया हुआ है, उसको तो आता हाँ, है। फिर क्या, फिर इसी को क्वेश्चन पढ़ना था। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज Kaplan-Meier curve? ओके फाइन। सो बिफोर कमिंग टू इट वी हैव टू, ये डेविड ऐसे है, हाउ वी एनालाइज phase 3 clinical trial. Phase 3 clinical trial is there. Now how will you analyze it? How is the efficacy, how it is holds true in the clinical grounds? It is by intention to treat analysis, interim analysis. Okay, intention, या तो हम intention to treat analysis से देखेंगे how much good it is, या तो interim analysis से देखेंगे, या तो p value से देखेंगे, या तो confidence interval से देखेंगे, and we will estimate the survival by many methods. So if we have question comes analysis of a clinical third study, how will you analyze? We analyze the outcome, the how good the study is, RCT or phase 3 study is, by following 5 things: by interim analysis, by intention to treat analysis, by p value, by confidence interval, by estimation of survival. And survival, how will we know how survival, what are the methods by which we come to know survival? More measurement of survival is by which means we have log-rank test, competing risk model, we have Kaplan-Meier curve, we have Cox pH model, we have life table analysis. Okay, so अभी आपको समझ आया Kaplan-Meier curve क्या है? It is a part of estimation of survival, analysis of statics, which in turn is a part of analysis of phase 3 trial. Okay, so origin समझ आया? So उसके बाद है what is Kaplan-Meier curve? Kaplan-Meier curve is a graphical representation of survival rate. This is the most simplest definition I could get. It is a graphical representation of survival rate. It has a 2 axes. One axis is time, y axis is survival rate. Fine. It is also it has steep from up to down always. Okay, it comes from up and then down, because the more down you go, it is along the x-axis. It will definitely fall with the time, the survival. It won't go up. So if you can see on x-axis there are years, and on y-axis there is survival rate. Okay, sometimes 1, or sometimes there are somebody write is 100. So for example, if I say my patients at 3 years or 4 years with one modality, only 40% will be alive, and on B treatment arm 80% are alive. Okay, so it is a graphical representation of survival rate. What are the advantages? It gives us effectiveness of treatment, estimates probability of death. How? For example, I have not started treatment. With this algebra, I can predict at 2 years with this arm how many of my patients will be alive. So it estimates probability of death, calculates survival rate, compares 2 groups at a single point of time, takes account the censored data. Censored data means if someone dies in between, still it is included in the study. Disadvantage क्या है? It doesn't take consideration age, other variables which are important. Fine. So ये था मेरा टॉपिक. ओके, समझा? हाँ भाई समझ आ गया।
कहाँ जा रहा हूँ भाई? ई सिगरेट्स के बारे में थोड़ा, जो निकोटीन वेपोराइजर होते हैं, एंड्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिनिक डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, बैटरी पावर डिवाइस होंगे, एक्टिवेट होंगे तो हीटिंग एलिमेंट रहता है अंदर, वो वेपोराइज करेगा लिक्विड सॉल्यूशन को। कार्ट्रिज रहती है निकोटीन से भरी हुई, उसको हीटिंग एलिमेंट गर्म करेगा तो धुआं निकलेगा, वही वेपर को इनहेल करते हैं, तो ये ई सिगरेट बन गया। ठीक है, सेकंड एवर स्मोकर, इसमें एटलीस्ट 100 तो होगा ही होगा। उसके बाद फॉर्मर उसको बोलेंगे जिसने 1 साल पहले छोड़ दी, फॉर्मर। ठीक है, रिसेंट बोलेंगे उसको जिसने 1 वीक टू 1 ईयर के बीच में छोड़ दी, लाइक मोर देन 1 वीक हो गया है छोड़े हुए। और करंट उसको बोलेंगे जिसको अभी भी एक्टिव, मतलब विद इन वीक उसने स्मोकिंग किया है, तो वो हो जाएगा करंट। ठीक है, तो लास्ट में रिवाइज करेंगे। ओके, अभी कार्सिनोजेनेसिस मैकेनिज्म लास्ट में पढ़ेंगे, या पहले पढ़ना है तो पहले निकाल देता हूं। ठीक है, सो निकोटीन इज द प्राइमरी एडिक्टिव प्रोडक्ट। टोबैको में ये ध्यान रखना है कि निकोटीन इज नॉट ए कार्सिनोजन। ठीक है, निकोटीन इज जस्ट ए एडिक्टिव प्रोडक्ट फॉर कंटिन्यूड स्मोकिंग एंड प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। तो फिर कार्सिनोजेनिक क्या है, टोबैको के साथ में जो केमिकल रहते हैं वो कार्सिनोजेनिक रहते हैं। तो स्मोकिंग टोपोग्राफी में अपन इंक्लूड करते हैं नंबर ऑफ पफ, पफ साइज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड वेलोसिटी। निकोटीन इज मेटाबोलाइज्ड बाय 450, साइटोक्रोम 450। दो तरीके हैं, स्लो एंड फास्ट। अगर फास्ट रहेगा तो फिर उनको छोड़ने में दिक्कत आएगी, सीजेशन फेल हो जाएगा उनका। इवोल्यूशन ऑफ सिगरेट्स में लाइक टारलेस, फ्लेवर्ड, फिल्टर्ड, इलास्टिक, ई सिगरेट्स, ये कई तरह की मिलती हैं। ठीक है, जिसमें फ्लेवर्ड, टारलेस ये सब पता है अपने को, फिल्टर्ड पता है, फिल्टर लगा रहेगा। फिल्टर्ड को अगर अपन या इनको सबको कंपेयर करें, जस्ट सिंपल जो बीडी मिलता है, तो बीडी इज 1.5 टाइम्स टू सिगरेट। ठीक है, उसमें 1.5 टाइम्स ज्यादा कार्सिनोजेनिक रहेंगे। नाउ इलास्टिक इज टू एडजस्ट द पफ, वेंटेड रहती है। ई सिगरेट्स अपन ने पढ़ी लिया। कार्सिनोजेनेसिस कैसे होगा, मोर देन 72 मिजरेबल कार्सिनोजेंस आर देयर। तो ये जो अपन आईआरसी के ग्रुप पढ़ते हैं ना, ग्रुप 1 इज नॉन कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, तो उसके इसके अंदर होते हैं। किसमें, सिर्फ सिगरेट में नहीं, सब में होते हैं। स्मोकलेस में भी होंगे और सिगरेट स्मोक, बीड़ी स्मोक, इनमें भी होगा। क्या क्या होते हैं वो, तो दीज आर द ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस। एरोमेटिक एमीन्स होंगे जो ब्लैडर कैंसर कराएंगे। बेंजीन होगा जो ल्यूकीमिया कराएगा। 1,3 ब्यूटाडाइइन होगा जो मल्टी ऑर्गन, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स में इसका रोल है। कैडमियम रहेगा, इथाइल ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड नाइट्रोसामीन्स। तो ये अपने इंपॉर्टेंट रहते हैं, नाइट्रोसामीन्स एंड पैरा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये मोस्ट ऑफ मैकेनिज्म में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इन टोबैको स्मोकिंग पॉलीपेटेंट हाइड्रो, लाइक व्हाट इज द पाथवे, ये जो केमिकल रहते हैं ना, VNK एंड NNN, ये नाइट्रोसामीन्स हैं दोनों, और पोटेंट कार्सिनोजेनिक है। VNK इज 4-मेथिल नाइट्रोसो अमाइनो समथिंग समथिंग, VNK नहीं, NNK ही है, एंड NNN नाइट्रोसोन क्या पता नहीं, जो भी है, NNN याद रख लेंगे। ये क्या करते हैं, NNK हो नाइट्रोसो कीटोन है, वो नाइट्रोसो अमीन है, कीटोन और नाइट्रोसो कीटोन है पहला वाला, एंड नाइट्रोसो ये क्या, निकोटीन है। हाँ ये वाला कीटोन डेरिवेटिव तभी के है। अच्छा, ये नाइट्रोसो निकोटीन नीचे। हाँ एक बार चेक कर लेंगे, ऐसा याद रखा है मैंने, NNK NNN। नाइट्रोसामीन रहते हैं, नाइट्रोसामीन बोलेंगे तो भी काम चलेगा अपना, और उसके आगे भी देख लेंगे एक बार। ये दोनों जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है टोबैको का, उस मतलब ऐसा जो अपन केमिकल हार्ड करते हैं ना किसी चीज को, वैसे टोबैको को भी हार्ड करते हैं केमिकल से। तो उसके दौरान ये लग जाता है केमिकल,
जो कुछ भी टोबैको प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसको फैक्ट्री में हार्ड करते हैं, तो उस प्रोसेस में ये केमिकल साथ में ऐड हो जाते हैं। पर से निकोटिन इज नॉट कार्सिनोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एडिक्टिव रहता है। पैथोजेनेसिस क्या रहेगा, 4 स्टेप है कार्सिनोजेनिक के। पहला, जो केमिकल्स है वो मेटाबोलाइज होंगे, नाइट्रोसामीन, एनएनएन, एनएनके, ये सब, और ऐसे कार्सिनोजन बनाएंगे जो डीएनए अडक्ट बनवाते हैं, डीएनए अडक्ट बनवा देंगे। वो डीएनए अडक्ट से क्या होगा अपने को पता है, म्यूटेशंस हो जाएंगे, जिसमें केरास p53 भी इन्वॉल्व है। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल, म्यूटेशंस हो गए। सेकंड, these products also inhibit UDP glucuronil transferase and glutathione S transferase, ये दोनों को इनहिबिट करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, कार्सिनोजन को जो इनएक्टिवेट करने का प्रोसेस है ऑक्सीडाइज करके, वो भी नहीं हो पाएगा। दो चीज हो गए। फिर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे तो वापस से म्यूटेशन करा देंगे ये भी। अब ये इतने म्यूटेशन हुए जा रहे हैं, और अगर ये रिपेयर नहीं होंगे, से p53 केरास कुछ भी इन्वॉल्व हो गया, रिपेयर नहीं हो पा रहे, रिमूव नहीं हो पा रहे, तो वो आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म कराएंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म लास्ट में कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल है। मेटाबोलाइट बनेंगे, कार्सिनोजेनिक डीएनए अडक्ट बनाएंगे, म्यूटेशंस करवाएंगे, इधर से ये यूडीपी ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज ये काम नहीं कर रहा, म्यूटेशन इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे म्यूटेशन हो गए तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा और कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो निकोटीन इज जस्ट एडिक्टिव कंपोनेंट, नॉट ए कार्सिनोजेनिक, बट इट कैन डिक्रीज एपोप्टोसिस एंड इंक्रीज एंजियोजेनेसिस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज बाय एनएफके बीटा, एक्टिवेशन ऑफ निकोटीन, एसिटाइलिन रिसेप्टर बाय निकोटीन, तो ये एनएनके रहता है इधर, इसमें भी सर्वाइवल प्रोलिफरेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स में। बट अगेन निकोटीन का रोल नहीं है, निकोटीन इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, पर कार्सिनोजेनिक तो यही रहेगा एनएनके। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हुआ। मैकेनिज्म के बाद अपन देखते हैं छोड़ना कैसे है। ये प्रिंसिपल स्टेप्स इन स्मोकिंग सीजेशन आर ask, advise, assess, assist and arrange. Ask मतलब what to ask about tobacco use. पेशेंट को अपन बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, इससे कार्सिनोजेनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर एडवाइस करेंगे, पूरा पूछ लेंगे उसको क्या हिस्ट्री है उसकी, उसके बाद एडवाइस करेंगे एवरी पेशेंट टू क्विट। उसके बाद विलिंगनेस देखेंगे उसकी कि पेशेंट वांट्स टू क्विट और नॉट। अगर वो छोड़ना चाहता है सही में तो काउंसलिंग करेंगे और फार्माकोथेरेपी देंगे, दिस इज असिस्ट। ठीक है, फिर फॉलोअप के लिए अपन अरेंज करेंगे, फॉलोअप फॉर सीजेशन सपोर्ट, जैसे क्रेविंग हुआ वापस तो शुरू नहीं कर दिया, तो 5 A's आर देयर, आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड अरेंज। ओके, इसके अल्टरनेटिव, मान लो अपने सेंटर पे इतना फैसिलिटी नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव है AAR और AAC, आस्क, एडवाइस एंड रेफर, आस्क, एडवाइस एंड कनेक्ट, आगे रेफर कर दो जिस सेंटर पे डी एडिक्शन अवेलेबल रहता है। ये एक स्लाइड घुमा देता हूं। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर टोबैको सीजेशन। ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन के बारे में अपन मतलब जो भी सारा ज्ञान है वो पेशेंट को दे देना है कि हार्मफुल इफेक्ट एडिक्टिव रहता है, इसका नेचर रहेगा, विड्रॉल आएगा, रिलैप्स करोगे तुम, वो सब जो भी है वो सब बता देना है उसको। दूसरा, अपने को थेरेपी देना है। ठीक है, तो इसके ज्ञान में ये भी इंक्लूडेड है सब। एनवायरनमेंट उसको बोलना है कैसे कैसे तुम एनवायरनमेंट चेंज करने से, बिहेवियर चेंज करने से, सोशल सपोर्ट से और इन सब चीजों से हेल्प मिलेगी। और उसके जो भी अटेंडेंट है उनको भी समझाना है, प्रोवाइड करना है उसको मोटिवेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, गाइडेड इमेजरी। ये भी गाइडेड इमेजरी भी एक तरह से मोटिवेशन का इमेजिनरी टेक्निक है। एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, बिहेवियरल स्ट्रेटजीज, और कुछ अगर थोड़ा बहुत 1 वीक 2 वीक ऐसा छोड़ा तो उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस देना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड, ऐसा पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे तो वो भी काम करता है, अपने को पता ही है। देन थेरेपी भी आते हैं अपन। ठीक है, तो पहला हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस में आ जाएगा सब हार्मफुल इफेक्ट और ये, फिर अपन उसके अटेंडेंट्स और उनको
एनवायरनमेंट चेंज, बिहेवियर, सोशल सपोर्ट के साथ साथ मोटिवेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये भी सब यूज करेंगे। ये मतलब नॉन फार्मेकोथेरेपी वाले इससे आगे सारे। फिर फार्मेकोथेरेपी में क्या क्या आएगा, वापस घुमा देता हूँ। सो विड्रॉल सिम्टम्स देख लेते हैं, उससे पहले क्या क्या है। तो पेशेंट इरिटेबल हो जाएगा, एनजीएस, रेस्टलेस, इंसोम्निया, ड्राई और सोर थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, एपेटाइट बढ़ जाएगा। एक जगह अपन जब पढ़ रहे थे पहले, अपन ने देखा था कि विड्रॉल में सिर्फ यही पढ़ रहे थे अपन, कॉन्स्टिपेशन। तो इन्होंने काफी सारे दिए हैं। तो इसके बेस पे तो अपन इसको ड्रग एडिक्शन मान सकते हैं, टोबैको को, मतलब टोबैको का एडिक्शन मान सकते हैं। नाउ फार्मेकोथेरेपी, गोल है अपना सीजेशन सक्सेस बढ़ाना है और क्रेविंग को कम करना है। क्या क्या फर्स्ट लाइन फार्मेकोथेरेपी एजेंट है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वेनेरिक्लिन एंड बुप्रोपियोन। सेकेंड लाइन में कौन है, क्लोरिडीन एंड नॉरट्रिप्टाइलिन। ये नॉन निकोटीन बेस्ड है, ठीक है। नाउ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या क्या आएगा, क्रेविंग और विड्रॉल सिम्टोम करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं निकोटीन के, इनहेलर्स, स्प्रेज, गम्स, लोजेंजेज, पैचेज, ये सब अपन पेशेंट को दे सकते हैं। उससे उनको हेल्प, क्रेविंग होगी तो उसको यूज कर लेंगे वो। Then bupropion, it is only FDA approved antidepressant for treatment of tobacco dependence. एक्शन इसका क्या है, NSAID इनहिबिटर रहता है रिसेप्टर का, तो रिवार्डिंग इफेक्ट कम करा देगा। Then varenicline is FDA approved, ये भी पार्शियल एगोनिस्ट रहता है और सस्टेन्ड रिलीज करा के मेसोथेलियल सिस्टम में मूड एलिवेट रखेगा पेशेंट का, तो उसको क्रेविंग नहीं होगी, ठीक है। बस हो गया, बाद वाला प्रोग्राम किसी दिन और पढ़ा दूंगा। सिंड्रोम ऑफ सिस्टमिक मैनिफेस्ट, चलो ठीक है। तो इसका तो जो सिंड्रोम ऑफ सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है वो ना प्राइमरी की साइड पे है ना मेटास्टेसिस की साइड पे है, वो उससे डिस्टेंट साइड पे है, ठीक है। तो इसका इंसिडेंस जो है दैट इज 8%। और मोस्ट कॉमनली कहाँ कहाँ होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, थाइमोमा, गायनी मैलिग्नेंसीज, ब्रेस्ट कैंसर और आरसीसी, इन सब में हो सकता है, ठीक है। तो टाइप्स क्या होते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के, सारे जितने मेडिसिन वाले ब्रांचेस है ना सब लिख दो, ठीक है। न्यूरो, एंडो, हिमैट, डर्मैट और र्यूमैट, ठीक है। ये सारे मेडिसिन वाले ब्रांचेस हैं, ये सब इनके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के मैनिफेस्टेशंस हैं। अरे अभी सॉरी, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक? ये जनरल ऑन्को 4। ओके ओके, थैंक्स। यही पढ़ा होता 3 महीने पहले से सब ने, हमारा जनरल खत्म हुआ होता ऐसे। वो मैकेनिज्म्स हैं, एक है ह्यूमोरल और एक है इम्यून मीडिएटेड। ह्यूमोरल क्या है, ह्यूमोरल क्या है कि ऐसा कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से जो है जो रिस्पॉन्स आता है वो डिस्टेंट साइड पे आता है, ठीक है। तो पेप्टाइड्स या साइटोकाइन से ऐसे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो डिस्टेंट साइड पे आता है, ठीक है। फिर इम्यून मीडिएटेड क्या है कि जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज बन रही हैं। वो एंटीबॉडीज ट्यूमर सेल्स के एंटीजेंस के अगेंस्ट बन रही हैं, बट वो क्रॉस रिएक्ट किसी और के साथ करती हैं। मोस्टली जो है ये न्यूरल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स वाला इसके साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी बनाना चाहती है एंटीजन के अगेंस्ट, बट वो बना देती है एंटीजन प्लस ऐसी जो कि न्यूरल सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। यही हम आगे पढ़ेंगे कि कारण है कि जब एंटीजन हट भी जाता है तब भी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती जाती है, और इसी वजह से इवन रिमूवल ऑफ द प्राइमरी विल नॉट हेल्प इन क्योरिंग दैट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म है, एक है ह्यूमोरल, एक है इम्यून मीडिएटेड। इम्यून मीडिएटेड में आपका इंट्रासेल्युलर इम्यून मीडिएटेड भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर इम्यून मीडिएटेड भी होता है, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स के जो है अंदर कोई एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर जो है वो डायरेक्टली अटैक ऑन न्यूरॉन, जो एंटीजन जो है वो सेल्स के ऊपर जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट वो बनाती है एंटीबॉडी, ठीक है। सो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मैंने आपको बताया, सारे मेडिसिन वाले ब्रांचेस इसमें डाल दो और सारे मेडिसिन वाले ब्रांचेस के
मैनिफेस्टेशंस डाल दो, ठीक है। तो न्यूरो, एंडो, हिमैट, डर्मैट और रिमैट, ठीक है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं किसका क्या क्या है। सो सीएनएस जो न्यूरो वाला है, न्यूरो वाले में सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, पीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सीएनएस से रिलेटेड क्या है? लिम्बिक एन्सेफेलाइटिस, सेरेबुलर डिजेनरेशन, मायोक्लोनस, ठीक है। ये सब सीएनएस सिम्टम्स है। पीएनएस सिम्टम्स क्या है? ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और सब एक्यूट सेंसरी न्यूरोपैथी, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, ठीक है। ये पैरानियोप्लास्टिक न्यूरल सिम्टम्स है, ठीक है। पैरानियोप्लास्टिक एंडोक्राइन सिम्टम्स क्या है? ये है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट इडियट सिक्रीशन, एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया का हम एक पढ़ेंगे, वो कुशिंग्स है, ठीक है। और कुशिंग्स में क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना, और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और एसआईएडीएच, ठीक है। तो एसआईएडीएच क्यों है? एडीएच ज्यादा बन रहा है। कुशिंग क्यों है? एसीटीएच ज्यादा बन रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, इंसुलिन लाइक फैक्टर जो है वो ज्यादा बन रहा है, ठीक है। फिर पैरानियोप्लास्टिक हेमाटोलॉजिकल क्या है? हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन ज्यादा और टीएलसी ज्यादा। तो अनीमिया, पॉलीसाइथीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस, ये पैरानियोप्लास्टिक हेमाटोलॉजिकल सिंड्रोम है। पैरानियोप्लास्टिक डर्मेटोलॉजिकल क्या है? कि हाइपर पिगमेंटेशन होने लगा, हाइपर केराटोसिस होने लगा, एनुलर लीजन्स बनने लगे, या फिर एक्सट्रीम में क्या हुआ? पेम्फिगस होने लगा, ठीक है। तो हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर केराटोसिस, एनुलर लीजन्स और पेम्फिगस। उसके अलावा एक चीज होती है जिसको कहते हैं स्वीट सिंड्रोम, ठीक है। फिर पैरानियोप्लास्टिक रूमेटिक मैनिफेस्टेशंस जो है वो है हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, वैस्कुलाइटिस और मायोसाइटिस। तो बोन, मसल और ब्लड वेसल तीनों को इफेक्ट करता हुआ एक एक हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, इडियोपैथिक मायोसाइटिस और वैस्कुलाइटिस, ठीक है। सो पहले हम न्यूरल वाला पढ़ेंगे, पैरानियोप्लास्टिक न्यूरल सिंड्रोम, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली लिम्फोमा की वजह से होता है, लिम्फोमा व्हिच इज DCLC फॉलोड बाय थाइमोमा, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो ऑफन प्रिसीड करते हैं देन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। सो मैकेनिज्म जो है वो क्या है? क्रॉस रिएक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स ऑफ द एंटीजन टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाना चाहती है एंटीजन्स के अगेंस्ट, बट वो बना लेती है न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज के अगेंस्ट, ठीक है। सो ये रीजन है कि इवन आफ्टर रिमूविंग ऑफ द ट्यूमर सेल सिम्टम्स कम नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ट्रीट भी कर दोगे तब भी सिम्टम्स नहीं जाएंगे। डायग्नोसिस क्या है ना? पीएनएस यानी पैरानियोप्लास्टिक न्यूरल सिम्टम्स जो हैं दे आर अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। तो पहले क्या है? सबसे पहले अगर किसी को पैरानियोप्लास्टिक न्यूरल सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपको सीएनएस मैलिग्नेंसीज रूल आउट करनी है कि पेशेंट अगर ऐसे किसी सिम्टम के साथ यानी सीएनएस सिम्टम पीएनएस सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो आपको पहले ब्रेन मैलिग्नेंसी रूल आउट करनी है, बोथ प्राइमरी एज वेल एज मेटास्टेसिस, ठीक है। और अगर आपने मैलिग्नेंसी रूल आउट कर लिया है तो आप ट्रीटमेंट इंड्यूस डैमेज रूल आउट करोगे कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज तो नहीं हुआ है जो हमने मैलिग्नेंसी ट्रीट किया। अगर ये दोनों नहीं है देन पैरानियोप्लास्टिक न्यूरल सिम्टम्स जो है आप उसको पैरानियोप्लास्टिक समझ सकते हो। तो इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, इट इज नॉट आवर फर्स्ट डायग्नोसिस, ठीक है। नाउ क्राइटेरिया फॉर न्यूरोलॉजिकल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। अब इसको ना एक बार मैं बुक से दिखाती हूँ। सॉरी, हेलो, हाँ पढ़ाओ। हाँ, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है न्यूरोलॉजिकल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का वो क्या है? सो कुछ डेफिनेटिव क्राइटेरिया होते हैं और कुछ पॉसिबल क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटिव क्राइटेरिया क्या होते हैं कि जो भी हमने ये सब पढ़े ना अभी ऊपर जो सिम्टम है ये वाले, सॉरी, तो बेसिकली ये जो सारे सीएनएस सिम्टम्स हमने पढ़े थे ना ये क्लासिकल सिम्टम्स है, ठीक है। तो अगर किसी को क्लासिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ठीक है, तो किसी को अगर क्लासिकल सिंड्रोम है और मतलब ये सारे जो हमने पढ़े थे ये सारे क्लासिकल सिम्टम्स है, ये
सारे सीएनएस वाले यानी लिम्बिक एन्केफेलाइटिस, सेरेब्रल डिजेनरेशन, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और सब अक्यूट सेंसरी न्यूरोपैथी, माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन, ये सारे क्लासिकल सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को क्लासिकल सिंड्रोम है जो कि 5 साल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल मतलब किसी को कैंसर का डायग्नोसिस था और 5 साल के अंदर अंदर कैंसर के डायग्नोसिस के उसको ये क्लासिकल सिंड्रोम आया है, ठीक है, तो दैट इज अ डेफिनेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर न्यूरोलॉजिकल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा कुछ नॉन क्लासिकल सिंड्रोम, कोई न्यूरल सिम्टम्स आ रहे हैं दैट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। माइंडेड इसमें इम्यूनोथेरेपी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि एंटीजन जो है वो न्यूरल एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो न्यूरल एंटीजन के अगेंस्ट बनाती है, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल सिंड्रोम दैट रिजॉल्व्स आफ्टर गिविंग कीमोथेरेपी, नॉट इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। तीसरा क्या है, नॉन क्लासिकल सिंड्रोम जिसमें ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज मिली हैं, ठीक है। ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज हम पढ़ेंगे क्या है। ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज यही है जो नीचे लिखे हुए हैं, एंटी-यू, एंटी-CV2, एंटी-RI, एंटी-MA2, एंटी-एम्फीमाइसिन, नीचे ठीक है। करो, वो दिखा So, नहीं। ये सारी जो है ये वो है एंटी ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज हैं। तो नॉन क्लासिकल का क्या है कि नॉन क्लासिकल विद या तो ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज मिलते हैं या नॉन क्लासिकल जो कि एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के देने के बाद जो है सेटल हो जाए। तो ये सारे जो है डेफिनेटिव क्राइटेरिया हैं। पॉसिबल क्राइटेरिया क्या है कि क्लासिकल सिंड्रोम है पर ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज भी नहीं मिली और पेशेंट को कोई कैंसर की हिस्ट्री भी नहीं है, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है विद पार्शियली कैरेक्टराइज्ड ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडी बट पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, ठीक है। एंड नॉन क्लासिकल सिंड्रोम, नो ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज और कैंसर था विद इन 2 years ऑफ डायग्नोसिस, ये पॉसिबल वो है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक डेफिनेटिव क्राइटेरिया याद रख लेंगे तो हो जाएगा उससे हमारा, ठीक है। एक क्राइटेरिया बोलो फिर से डेफिनेटिव वाला बस। ठीक, डेफिनेटिव क्राइटेरिया है कि क्लासिकल सिंड्रोम है दैट डेवलप्स विद इन 5 years ऑफ डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि 5 years ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि किसी को कोई कैंसर की हिस्ट्री रही है और 5 साल के अंदर अंदर उसको क्लासिकल सिंड्रोम आ गया, ठीक है। तो ये एक डेफिनेटिव क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरा, नॉन क्लासिकल सिंड्रोम आया पर उसको ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तब, या नॉन क्लासिकल सिंड्रोम आया और उसको कीमोथेरेपी देने पे नॉन क्लासिकल सिंड्रोम इंप्रूव हो रहा है, ये दोनों डेफिनेटिव क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम विद ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज, ठीक है, वो भी एक मतलब न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भले वो क्लासिकल हो या नॉन क्लासिकल हो, उसमें अगर ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडी मिली है तो वो डेफिनेटिव क्राइटेरिया है, ठीक है। ये क्लासिकल सिंड्रोम क्या है? क्लासिकल सिंड्रोम यही वाले जो हमने पढ़े थे ना, सीएनएस पीएनएस वाले, अच्छा, जो सीएनएस और पीएनएस के फीचर्स हमने पढ़े थे, अगर वही वाले सिंड्रोम्स आते हैं एग्जैक्टली तो वो क्लासिकल सिंड्रोम्स हैं, और अगर वो उसके अलावा कुछ आते हैं तो वो नॉन क्लासिकल सिंड्रोम है। मिल नहीं रहा चैप्टर, रुको, ठीक है। तो ये ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज क्या है? ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज जो है ये पैनल है सीरम एंटीबॉडीज का अगेंस्ट न्यूरल प्रोटीन, ये पीएनएस में मिलते हैं और नॉन मैलिग्नेंट सिंड्रोम में भी मिलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज डज नॉट कंफर्म कैंसर और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज आल्सो डज नॉट रूल आउट कैंसर। तो जो सिर्फ इनकी प्रेजेंस है दैट इज नॉट enough for you to make a diagnosis of cancer. You need additional criteria जो हमने अभी पढ़ा कि definitive criteria में क्या है कि पेशेंट को नॉन क्लासिकल सिम्टम्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर हिस्ट्री ऑफ कैंसर होना चाहिए, ठीक है। और एंटीबॉडी डिटेक्शन जो है वो उसका डिटेक्शन होने का टाइम लगता है डिजीज में, ठीक है। ठीक है, अदर सिंड्रोम्स जो हो सकते हैं वो ये हैं ऑप्सोक्लोनस, मायोक्लोनस और स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बेसिकली हमने ये पढ़ लिया कि ये ऐसा है कि एंटीजेंस जो हैं वो न्यूरल हैं और एंटीबॉडी जो है शरीर बनाता है एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस, बट वो न्यूरल सेल्स के अगेंस्ट भी काम करती है, ठीक है। फिर तो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट से आपका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। नाउ हम क्या देंगे इसको ट्रीट करने के लिए? तो वील हैव टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है एंटीजन के अगेंस्ट। तो इस एंटीबॉडी को कर्व करने के लिए वी विल डू इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है।
तो क्या क्या we'll use steroids, ठीक है, at dose of prednisolone of 1 mg per kg per day और methylprednisolone at 1 gram per day, ठीक है. So we can give steroids. Other than that we can give cyclophosphamide. Cyclophosphamide क्या है, 2 mg per kg per day देना है. IVIG दे सकते हैं, ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन द क्लियरेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज जो बनी है. उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप प्लाज्माफेरेसिस कर देंगे. दैट इज प्लाज्माफेरेसिस क्या है, इमीडिएट इंप्रूविंग करेगा और शॉर्ट लास्टिंग रहेगा, क्योंकि जैसे ही एंटीबॉडी दोबारा बनेगा बॉडी को दोबारा सिम्टम आना शुरू हो जाएगा. और रिटुक्सीमैब दे सकते हैं. रिटुक्सीमैब किस में देंगे, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस में स्टिफ पर्सन सिंड्रोम में, ठीक है. इनमें रिटुक्सीमैब डेफिनेट क्राइटेरिया में था ना एक कि कीमो से रेस्पॉन्ड कर जाए. क्या चीज, डेफिनेट क्राइटेरिया में था ना एक क्राइटेरिया कि कीमो से रेस्पॉन्ड कर हाँ. जाएगा. तो मतलब कीमो काम कर रहा है क्या इनमें, और कुछ में करता अरे है हम कुछ में नहीं. प्रॉपर कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, तो उस कैंसर से जैसे मान लो किडनी कैंसर है, उससे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कॉमन होता है. तो किडनी कैंसर ट्रीट करते टाइम हम उसकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, उस ट्रीटमेंट से पैरानियोप्लास्टिक के सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो रहे हैं. तो वही ना, इसमें अभी बात बोला ना आपने इतने की कीमो काम नहीं करेगा, ऐसा पूछ रहा था. यूजुअली ये है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम यूजुअली कीमो देने के बाद खत्म नहीं होते हैं, पर इन्होंने ऐसा दिया कि अगर सेटल हो जाते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बाय गिविंग ऑफ कीमो, इट इज अ डेफिनेटिव क्राइटेरिया. हाँ, एक्चुअली ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो अपन पढ़ रहे हैं, दैट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बिलोंग्स टू कैंसर. तो जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हुआ है वो कैंसर से ही हुआ है, ये उसके डेफिनेटिव क्राइटेरियाज है. न्यूरोलॉजिकल के है ना वो, सबके थोड़ी है. नहीं, न्यूरोलॉजिकल के हैं बस. हाँ, सिर्फ न्यूरोलॉजिकल का वो क्राइटेरिया है, क्योंकि बाकी सबके ह्यूमोरल भी हो सकते हैं. न्यूरोलॉजिकल मोस्टली एंटीबॉडीज बनती हैं, बाकी सब में ह्यूमोरल बनते हैं, ठीक है. ओके. ठीक है. उसके अलावा ये सब है इम्यूनोसप्रेशन की, हम सिर्फ इम्यूनिटी को दबा रहे हैं ताकि पेशेंट जो है वो ना बनाए एंटीबॉडी ना बनाए एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है. उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी तो हमें करनी है. और तीसरी चीज जो है वो है सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, ठीक है. ये क्या है, जैसे लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है या फिर मायस्थीनिया ग्रेविस है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करते हैं. तो इनमें आप पिरिडोस्टिग्मीन दे सकते हो, ग्वानिडीन दे सकते हो, अमीनोपाइरिडीन दे सकते हो. ये सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स है क्या ये? हाँ हाँ, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है. तो ये था न्यूरल सिम्टम्स खत्म हो गए. अब पैरानियोप्लास्टिक एंडोक्राइन, इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे वो है SIDH, ठीक है. ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोनाट्रीमिया है, ठीक है. तो इसमें ना ये कैरेक्टर हमको याद रखना है, इट इज हाइपोटोनिक हाइपोऑस्मोलर यूवोलिमिक हाइपोनाट्रीमिया. बेसिकली शरीर में जो है सिर्फ पानी बढ़ रहा है. SIADH का फुल फॉर्म बताओ पहले. सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन. तो ADH का काम है एंटी डाययूरेटिक. हाँ, तो इसमें जो है सोडियम जो है नहीं कंजर्व होता, इसमें सिर्फ पानी कंजर्व होता है, ठीक है. तो ये It is जो है, opposite of diabetes insipidus, I think. हाँ, इट इज ऑपोजिट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें बॉडी जो है सिर्फ पानी कंजर्व कर रही है, क्योंकि नीचे भी हम पढ़ेंगे कि बॉडी का जो क्या होता है, जब भी सीरम हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है, तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी से क्या होता है, बॉडी पानी कंजर्व करने की कोशिश करती है. तो जब पानी कंजर्व करने की कोशिश करती है तो साथ में सोडियम भी कंजर्व करती है, ठीक है. बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ पानी कंजर्व होगा, सोडियम कंजर्व नहीं होगा. तो ये पानी कंजर्व करने की वजह से क्या होगा, हाइपोऑस्मोलैरिटी हो जाएगी. तो हाइपोऑस्मोलैरिटी, हाइपोटोनिक हाइपोनाट्रीमिया, बट पेशेंट यूवोलिमिक रहेगा, ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म क्या है, हाइपोथैलेमस ADH बनाता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, ठीक है. उसके पार्ट्स होते हैं V1A, V1B और V2, ठीक है. तो डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिफरेंट टीन रिसेप्टर के डिफरेंट एक्शन है. तो ये जिसपे V2 जो है ना, V2 पे ADH सबसे ज्यादा जल्दी काम कर देता है, ठीक है. तो V2 का काम क्या होता है कि वो उस पे ऊपर एक्वापोरिन्स होते हैं जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के होते हैं,
ऊपर होते हैं जो कि बेसिकली वाटर को अंदर लेके आते हैं बॉडी के और वेजोडाइलेशन करते हैं। बाकी सब वेजो कंस्ट्रिक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच, ये सब V1A V1B का फंक्शन है। V2 का क्या है? एक्वापोरिन सिक्रीट करना, और एक्वापोरिन क्या है? वो डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है और वाटर को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो जब भी ADH सिक्रीट होगा ना इसमें सिंड्रोम ऑफ ADH पे, तो वो सबसे ज्यादा जो है V2 को अफेक्ट करेगा। इस V2 की वजह से क्या होगा? बॉडी में पानी भरेगा। ठीक है, तो इन जनरल पीपल क्या होता है, नॉर्मल लोगों में प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी जब भी 285 के ऊपर बढ़ती है तो हाइपोथैलेमस उसको सस्पेक्ट करता है और थर्ड सेंटर एक्टिवेट कर देता है। थर्ड सेंटर एक्टिवेट करता है, पेशेंट पानी पीता है। दूसरी चीज ADH सिक्रीशन होता है। ADH सिक्रीशन से क्या होता है? सोडियम भी बढ़ता है, पानी भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम बढ़ता है ना वो V1B रिसेप्टर की वजह से बढ़ता है, और पानी जो बढ़ता है वो V2 की वजह से बढ़ता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ V2 वाले को मतलब एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? सोडियम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, V1B की वजह से सोडियम नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ V2 काम कर रहा है। उससे क्या होगा? डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया होगा, और यूरिन जो है, यूरिन में सोडियम आता जाएगा तो यूरिन हाइपरटोनिक हो जाएगी, यूरिन में हाइपरनाइट्रीमिया हो जाएगा, प्लाज्मा जो है वो डाइल्यूट होगा और उसमें हाइपोनाइट्रीमिया होगा। ठीक है, सो सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट ADH सिक्रीशन जो है उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन जो है वो मैलिग्नेंसी है। ठीक है, उसमें भी मोस्ट कॉमन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। ब्रेस्ट कैन बी, हेड नेक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा, थायमोमा, पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, बाकी सब ड्रग इंड्यूस्ड या फिर पल्मोनरी डिसऑर्डर या CNS डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? ये क्लिनिकल सिम्टम्स जो है ADH के डिपेंड करेंगे कि पेशेंट का सोडियम लेवल किस तरह से गिरा है। ठीक है, तो अगर तो अक्यूट सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है, अक्यूट सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया मतलब अक्यूट भी और सीवियर भी। सीवियर माने 115 से कम हो गया सोडियम, अक्यूट मतलब लेस देन 48 आवर्स में सोडियम 115 से कम हो गया। ठीक है, तो पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सीजर्स, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इवन डेथ तक हो सकती है। ठीक है, दिस इज अक्यूट सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया। क्रॉनिक हाइपोनाइट्रीमिया में क्या होगा? पेशेंट को फटीग होगा, कंफ्यूजन होगा, ही कैन हैव फॉल्स और अटेंशन डेफिशिएंट। ठीक है, सो इस पे डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है कैसा ले रहे हो। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि किसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, पेशेंट का जो ब्रेन है ना वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है, अच्छा, सो बेसिकली हाइपोनाइट्रीमिया बढ़ रहा है। हाइपोनाइट्रीमिया बढ़ने की वजह से क्या होता है? सेरेब्रल एडीमा भी होता है। ठीक है, एंड सेरेब्रल एडीमा की वजह से बॉडी क्या करता है? बॉडी कहता है कि भाई मेरे पास पानी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, अब मैं क्या करूं? तो क्या करता है? पानी कम करने की जगह इलेक्ट्रोलाइट लूज करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज करेगा, अमाइनो एसिड भी लूज करेगा, क्रिएटिनिन भी लूज करेगा, ताकि वो आइसोटोनिक रह ले। ठीक है, सो कई बार जो है ये ओवरवेल्म हो जाता है उस वजह से कि बेसिकली बॉडी जो है वो ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है ब्रेन का, बट समटाइम्स इवन दिस इज नॉट इनफ फॉर द ब्रेन टू कॉम्पनसेट। कई बार इसकी वजह से भी यूवोलिमिया जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, सो डायग्नोसिस ऑफ SIADH, डायग्नोसिस क्या है? एसेंशियल फीचर, इसमें भी कुछ हमने पैरानियोप्लास्टिक न्यूरल वाले सिंड्रोम में हमने पढ़े थे कुछ डेफिनेटिव क्राइटेरिया, SIADH में भी कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? प्लाज्मा में सोडियम कम हो जाएगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, यूरिन का सोडियम भी बढ़ जाएगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है 275 से कम हो जाएगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 100 से ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है, पेशेंट फिर भी वोलिमिक नॉर्मल रहेगा, यूवोलिमिक रहेगा, उसको कोई ड्राई माउथ नहीं होगा, कोई टैकीकार्डिया नहीं होगा, उसका यूरिनरी सोडियम जो है 40 से ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम नीचे पढ़ेंगे कि अदर कॉजेज ऑफ हाइपोटोनिक हाइपोवोलीमिया, जबकि पेशेंट यूवोलिमिक रहता है, उसके दो और इम्पोर्टेंट कॉजेज होते हैं कि एड्रीनल डिसफंक्शन और थायराइड डिसफंक्शन, ये दोनों अदर कॉजेज होते हैं ऑफ
दिस काइंड ऑफ ब्लड पिक्चर। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये टाइप का ब्लड पिक्चर है तो हमें 100% श्योर नहीं हो जाना कि उसको SIADH है। ठीक है, हमें एसेंशियल फीचर्स देखने हैं, ऑल्सो हमें थायराइड फंक्शन और एड्रीनल फंक्शन चेक करना है। अगर वो दोनों नॉर्मल है और हमारे एसेंशियल फीचर्स मीट हो रहे हैं, ये है डेफिनेटिव क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग SIADH। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ सप्लीमेंटल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड जो है वो 4 mg से कम हो रहा है। ठीक है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 10 से कम है, फ्रैक्शनल सोडियम एक्सक्रीशन 1% से ज्यादा है, यूरिया एक्सक्रीशन 55% से ज्यादा है, ये सब उसके सप्लीमेंटरी फीचर्स हैं। ठीक है, तो हम जो डायग्नोसिस बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? बाय एक्सक्लूडिंग अदर कॉजेस। तो हमें क्या एस्टैब्लिश करना है कि हमें ऐसी बीमारी ढूंढनी है जिसमें हाइपोटोनिक यूवोलेमिक हाइपोनाट्रीमिया हो। ठीक है, क्योंकि SIADH में भी क्या होता है, हाइपोटोनिक हाइपोनाट्रीमिया विद यूवोलीमिया होता है। और मैंने बताया 2 चीजों में ऐसा हो सकता है, एक थायराइड एक एड्रीनल। तो हाइपोथायराइडिज्म और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी कैन मिमिक दिस काइंड ऑफ ब्लड पिक्चर। ठीक है, तो हमें इन दोनों को तो रूल आउट करना ही है बिफोर मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ SIADH। ठीक है, उसके अलावा हाइपोनाट्रीमिया के साथ पेशेंट आएगा तो आप उसका ब्लड पिक्चर जब उसकी ऑस्मोलैरिटी वगैरह देखोगे तो हाइपोनाट्रीमिया कैन ऑल्सो अकर विद हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरप्रोटीनीमिया, बट वो सब सूडो हाइपोनाट्रीमिक होते हैं और इन सब में जो है ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ऑब्वियसली अगर हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरलिपिडीमिया होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई मिलेगी, सो नॉट आर क्राइटेरिया ऑफ SIADH। सिमिलरली जब रीनल कॉजियासाइटिस होता है तब भी जो है पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिया होता है, बट ऑब्वियसली अगर किसी को रीनल कॉजियासाइटिस वगैरह है तो उसको थर्ड स्पेसिंग की वजह से और क्या होगा, ही विल बी हैविंग हाइपोनाट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया। ठीक है, क्योंकि उसको थर्ड स्पेसिंग हो रही है तो ही इज लूजिंग वाटर। ठीक है, तो उसका जो ब्लड पिक्चर है दैट विल बी हाइपोवोलेमिक। ठीक है, सो वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि ही हैज SIADH, वो भी हमने पढ़ लिया कि हमने उसको ग्रेड भी करना है कि SIADH किस लेवल का है, इज इट अक्यूट, इज इट सीवियर। क्योंकि अक्यूट सीवियर क्या है, लेस देन 48 आवर्स में लेस देन 115 हो जाए उसका सोडियम। ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, हमें उसको ट्रीट करना है इसलिए। ठीक है, तो अगर तो पेशेंट को अक्यूट सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनाट्रीमिया है, ठीक है, कि अक्यूट यानी लेस देन 48 आवर्स में हो गया, सीवियर मतलब लेस देन 115 पहुंच गया और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, अब आप उसको दो 3% NaCl दो, कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन दो। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको एक सेफ सोडियम वैल्यू हो जाएगी और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, हमें पेशेंट को नॉर्मल सीरम वैल्यू में नहीं लेके आना है, हमें सेफ सोडियम वैल्यू में लेके आना है और मैक्सिमम लेवल ऑफ करेक्शन जो है दैट इज 8 to 12 मिलीमोल पर लीटर पर डे। ठीक है, टारगेट क्या है कि बस 115 से ऊपर ले आओ, 120 तक ले आओ, दैट इज सेफ। ठीक है, ये है अक्यूट सीवियर सिम्टोमेटिक। ठीक है, सीवियर एसिम्टोमेटिक में क्या करना है, ठीक है, कि सोडियम उसका 115 से कम है बट पेशेंट को ज्यादा सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो एकदम से ऐसे 3% NaCl देने की जरूरत नहीं है, हम उसको वैप्टान दे सकते हैं, कोल वैप्टान और टोल वैप्टान। ठीक है, टोल वैप्टान ओरल है, कोनी वैप्टान IV है। ठीक है, तो ये वैप्टान क्या करते हैं, जो हमने पढ़े थे V2 रिसेप्टर थे ना, V2 रिसेप्टर क्या कर रहे थे, बॉडी में पानी भर रहे थे। ठीक है, तो ये V2 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट हैं। ठीक है, फिर है नॉन सीवियर यानी 115 के ऊपर है सोडियम और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो अभी हमें ना 3% NaCl देने की जरूरत है ना वैप्टान देने की जरूरत है। अब आप उसको कंजर्वेटिव मेजर करोगे क्या, क्योंकि उसकी बॉडी में पानी भर रहा है, उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, नेगेटिव बैलेंस में लेके जाओगे। क्यों, क्योंकि ये इंप्रूव करेगा पेशेंट को बट स्लोली करेगा। ठीक है, फिर ओरल यूरिया दो, इट इज अ वेरी गुड मेथड, आप 30 ग्राम पर डे देते हो, बट एक तो इसमें मतलब इट इज वेरी गुड मेथड बिकॉज इससे ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है, बट इट हैज अ वेरी बैड पैलेटेबिलिटी, तो लोग इससे जो है दे आर नॉट एबल टू कीप अ कंप्लायंस। इवन आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड लिक्विड्स देते हो, इवन देन पेशेंट कैन नॉट कीप कंप्लायंस। ठीक है, देन अदर देन ओरल यूरिया यू कैन ऑल्सो गिव लूप डायूरेटिक्स, उससे भी क्या होगा भाई, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा उससे भी। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो गिव डिमेकोसाइक्लिन और लिथियम, लिथियम बैंड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, रीनियल ट्यूब्यूल्स में ADH की एफिनिटी को कम कर देते हैं, जिससे कि जो एक एक्वापोरिन 2 यानी V2 का काम है वो नहीं हो पाता। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। वैप्टान क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है V2 के, इससे क्या होता है, एक्वापोरिन काम कम करता है, इससे बॉडी जो है सोडियम कम वाटर कम अब्सॉर्ब करेगी, यूरिन ज्यादा जो है बनाएगी। ठीक है,
फिर ये हमने पढ़ लिया, ये 2 स्टडीज आई थी, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 और सॉल्ट वाटर। ये टोलवेप्टान के ऊपर, मतलब सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 जो है टोलवेप्टान के लिए आई थी, सॉल्ट वाटर जो है वो कुनिवेप्टान के ऊपर आई थी, ठीक है। फिर आता है एक ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। इसमें क्या है, जब आप रैपिड करेक्शन और सोडियम करते हो तो ब्रेन जो है ट्राई करता है टू रिवर्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब बॉडी बहुत ज्यादा वो बनाती है, मतलब ब्रेन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट्स बनाता है, तो इससे फ्लूइड शिफ्ट होता है फ्रॉम द ब्रेन सेल टू द प्लाज्मा, जिसकी वजह से फर्दर श्रिंकेज ऑफ ग्लाइल सेल्स हो जाएगा और ब्रेन सेल्स के ऊपर जो है सेलुलर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसके भी रिस्क फैक्टर वही है कि अगर बहुत ही कम सोडियम हो जाए, 105 से कम हो जाए, तब अल्कोहलिज्म, मैलन्यूट्रिशन, ये सब, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एसीटीएच। एसीटीएच जब बढ़ता है तब क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम क्या है, कुशिंग सिंड्रोम में एसीटीएच बढ़ गया तो बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम क्या है, बंदे ने बाहर से बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स ले लिए, ठीक है। सो हाइड्रोजेनिक कॉजेज आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है। उसके अलावा एंडोजीनस क्या हो सकते हैं, एंडोजीनस हो सकते हैं एसीटीएच डिपेंडेंट या एसीटीएच इंडिपेंडेंट। एसीटीएच इंडिपेंडेंट क्या होगा कि मतलब उसको पिट्यूटरी की जरूरत नहीं है, एड्रिनल अपना खुद ब खुद जो है ट्यूमर बना के एसीटीएच सिक्रीट, कोई एसीटीएच सिक्रीट करता जा रहा है, ठीक है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता जा रहा है एड्रिनल अपने खुद के ट्यूमर से, सो ही इज नॉट एसीटीएच डिपेंडेंट। एसीटीएच डिपेंडेंट कब होगा, जब वो जो है पिट्यूटरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पिट्यूटरी एडेनोमा जो है वो हाइपर फंक्शनिंग है, वो एसीटीएच बना रहा है और वो जो है फर्दर स्टेरॉइड ज्यादा बना रहा है, तो दैट इज एसीटीएच डिपेंडेंट, ठीक है। या फिर एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रहा है एसीटीएच का, स्टेरॉइड्स का नहीं, एसीटीएच का एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉजिंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड प्रोडक्शन, ठीक है। सो इनके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर, कार्सिनोइड, एनईटी, थाइमिक कार्सिनोइड, ये सब, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे जो हम कहते हैं ना कुशिंगॉइड फीचर्स होते हैं, लिबिडो कम हो गया, वेट गेन हो गया, राउंड फेसेस, फेशियल प्लेथोरा, मेंसेस चेंज हो गए, हाइपरटेंशन, वही सब जो कुशिंगॉइड फीचर्स होते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली अगर बॉडी में स्टेरॉइड का लेवल यानी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा है तो आप कॉर्टिसोल का लेवल चेक करोगे, तो 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल चेक करेंगे, अगर वो 3 टाइम्स दी हायर लिमिट है तो, या लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल चेक करेंगे बिटवीन 11 PM to 12 AM, अगर वो 2 टाइम्स दी हायर लिमिट है तो, या फिर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में हम क्या करते थे, हम रात को उसको डेक्सामेथासोन देते थे और अगले दिन सुबह फास्टिंग एसीटीएच लेते थे, ठीक है। तो अगर तो एसीटीएच सप्रेस हो गया, ठीक है, तो एसीटीएच सप्रेस हो गया, इसका मतलब बॉडी में जो है आपका जो वो आ रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी axis, it is depending on the ACTH. If it is not suppressed, इसका मतलब it is not dependent on the ACTH, it is ACTH independent, ठीक है। it has an ectopic ACTH production, ठीक है। so ठीक है, फिर इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट इसमें अब ऐसा नहीं है, इसमें अब नाउ ऑनवर्ड्स जो है आप ट्रीटमेंट जब भी बताओगे आप ट्यूमर डायरेक्टेड एंड सिंड्रोम डायरेक्टेड अलग अलग बताओगे, क्योंकि ये सारे ह्यूमोरल हैं, दे आर नॉट एंटीबॉडी बेस्ड, दे आर ह्यूमोरल। तो जब आप सर्जरी करते हो या कीमो देते हो तो आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। सो व्हेन यू डू सर्जरी और गिव कीमोथेरेपी इट विल डिक्रीज द स्टेरॉइड लेवल्स, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज ह्यूमोरल। सिमिलरली सिंड्रोम के लिए क्या है, सिंड्रोम के लिए आपको ऐसा कुछ देना जिससे स्टेरॉइड कम हो जाए। तो extreme cases में you can also do bilateral adrenalectomy, you can give ketoconazole, you can give metapirone, you can give mitotane, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, स्टेरॉइडोजेनेसिस कम करते हैं। तो ये था SIADH। हो गया है, मतलब थक गए हो या रुकूं, क्या करूं? एसीटीएच इंडिपेंडेंट तो हुआ ना कि एड्रिनल ट्यूमर खुद से ही बना रहा है सीधा। हाँ, एड्रिनल ट्यूमर खुद से जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बना रहा है तो उसको ACTH की जरूरत नहीं है। तो उसको जब हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देंगे तो उसका ACTH कम नहीं होगा, उसका लेवल कम नहीं होगा, मतलब एसीटीएच की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, उसका लेवल ग्लूकोज जो स्टेरॉइड है उसका लेवल कम नहीं होगा। बाहर से ठीक है, फिर है बाहर से हाइपोग्लाइसीमिया। स्टेरॉइड देंगे तो अंदर का स्टेरॉइड पे वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा ना, और वो फिर से नया प्रोड्यूस नहीं करेगा एंडोजीनस, ऐसा रहता है ना कॉन्सेप्ट।
आई थिंक हो गया रे आज का। ठीक है, बाकी